अच्छा, can we start now? So we should start. Yes, please start. Yeah. Okay. Welcome everyone. I am Gopal Khetan on behalf of CA Study Circle. Welcome all the participants for today's seminar. Today's seminar is on the Caro and Schedule 3. The speaker is our own Mayur Agrawal. Now I request to our President CA Vishnu Tusayan ji to give the opening remarks. Thank you, Gopal. Vishnu bhaiya. Thank you, Gopal. Friends, today we assembled on the Zoom meeting, virtual meeting, for the purpose of discussing over the Caro, which has brought some changes, which is very relevant and vital for this current financial year, 21-22, 21-22. And we also, from 1st April 21, certain changes has been brought in Schedule 3, which is effective from 1st April 21, which has a wide impact while preparing the financial statement for the financial year 21-22. Basically, if we go through the amendments, we will find that government intention is to is mainly focusing on the disclosure, proper disclosure of the informations. Say, such example for promoters, KMP, directors, promoters, and they also want what is our source of fund and what is the application of fund. Along with that, aging. कौन सा कितने एज का है, मीन 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर, जिसको कि हम लोग रफली लेके निकल जाते थे. एजिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी प्रॉपर्ली. जो चार्ज का रिलेटेड कुछ चेंजेस वगैरह होते थे जो हम लोग नहीं दिखाते थे, उसको दिखाना होगा. और जो हम लोग फंड बोरो करते हैं, जो कि बैंक की प्रायर रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने लॉन्ग टर्म फंड लिया है तो उसको वर्किंग कैपिटल नहीं लगा सकते, लाइक दैट. उसकी बात भी डिस्क्लोजर के बारे में उन्होंने वो मांग रहे हैं. CSR एक्टिविटी है, क्रिप्टो करेंसीज है, इस सब के बारे में जो नए नए कंसेप्ट है, उसको वो चेंजेस के लिए दे हैव एडवाइज्ड. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ आई गिव द प्रोसीडिंग हैंड ओवर बैक टू Gopal Khetan here for the purpose of inviting the speakers and do the needful and do the justice with the audience. Thank you so much, Gopal. Gopal, hand over to you. Okay, भैया. Okay. Thank you, भैया. Yeah. So now today our speaker is the Mayur Agrawal. Now I am giving the introduction of the Mayur Agrawal. Mayur Agrawal is a chartered accountant and company secretary. He is the LLB and the commerce graduate from St. Xavier's College. He is also the registered vendor under IBBI, also certified CC content auditor, and he is also experienced corporate world and the entrepreneurship. He was the assistant manager in Vedanta Limited. He was awarded as the best employee, and currently he is a partner in the ALP and associate and practicing in the field of corporate law, statutory audit and valuations. He has been actively associated with various organizations, professional and social. He is also the secretary of the CA Institute Study Circle. He is the CA Study Circle and the treasurer of TCN Alumni Associate. Chairman in the chairman of the seminar of VIP. Mayur is a regular speaker and he's given the various topics. Now I will request Mayur start the Mayur. जी चालू आहे ना, तिला आता पुढची ऍक्टिव्ह मार्क कोणते वेळ आहे? I am unable to share my एक गोष्ट झाला आता, तेव्हा गोष्ट ठीक होती. Can you make me the co-host, please? ओके, तुम्ही आला ना? It's fine. For this two months, there are much of things because. हाँ Mayur. हाँ बोलिए सर. PPT शेयर नहीं कर पा रहा हूँ भैया मैं. इंटरेस्ट वाला तो सर बना दीजिए प्लीज. सर इंटरेस्ट वाला दे रहा हूँ. एक्चुअली सर वो बासु को फीवर हो रखा है. ही इज ट्राइंग, वो दवाई लिया है. अभी 5-6 बजे मेरे को डाटा भेजेगा, उसके बाद मैं आपको भेजता हूँ. ही इज आल्सो नॉट वेल. सब जगह वही प्रॉब्लम आ रहा है. मैं कोशिश करके जितना जल्दी होता है भेजता हूँ सर. ओके ओके सर आप मेरे को अनम्यूट कर दीजिए सर.
विवेक भैया यस गोपाल हेलो आवाज नहीं आ रही है हम बोले we have 173 participants. हाँ नहीं ठीक ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे को लगता है सबको म्यूट कर दो सबको गोपाल कर रहे हैं हाँ हाँ सर सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए तभी ये वेबिनार हो पाएगा सर प्लीज अनम्यूट ऑल द पीपल इन द वेबिनार बैंक वाला बैलेंस शीट में कंप्यूटेशन बैलेंस शीट में तो अदर इनकम भी इंक्लूड होगा वो थोड़ी विवेक भैया सब पार्टिसिपेंट को म्यूट करवाइए। तो भैया आप होस्ट हैं, आप ही को होस्ट बना पाएंगे, प्लीज आप को होस्ट बना दीजिए तो मैं पीपीटी शेयर कर पाऊँ और रेगुलेट कर पाऊँ। विष्णु भैया क्या हाँ विष्णु भैया होस्ट है, वही को होस्ट बना पाएंगे। हाँ हाँ सब पार्टिसिपेंट को म्यूट करवा दीजिए। हाँ नहीं संजीव जी बोला हूँ शाह संजीव भैया एक बार हाँ, होस्ट बन जाता हूँ। बोला हूँ हाँ क्या कैपेसिटी इसको कम होना एक ऑप्शन होता है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेंट चाह के भी अनम्यूट नहीं कर सकता। करेक्ट बट उसके लिए मुझे को होस्ट या होस्ट होना होगा भैया। आई एम एज ऑफ नाउ नॉर्मल पार्टिसिपेंट, तो मैं वो चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो जो भी देख रहा है होस्ट या को होस्ट उसको ये कॉन्फ़िगर करना है कि पार्टिसिपेंट चाह के भी अनम्यूट नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल है तो राहुल नहीं राहुल भैया नहीं है, वो विष्णु भैया लॉगिन किया राहुल। ओ राहुल रोंगटा जी नहीं राहुल भैया इज नॉट जॉइन भैया। अच्छा मैं तो उसको हम परेशान करता। कितने की थी 70 लाख का था, 10 लाख का हुआ ना। Friends, I am starting my deliberation. In the meantime, I will get the option to share the PPT. Let us discuss, as it is a group discussion. It will be better if we start the discussions, and as and when I get the authority to share, I will share the PPT as well. So two topics has been allotted to me, friends. One is CARO 2020, and the second one is amendments in Schedule 3. Friends, as we all know, CARO has been deferred. CARO 2020 has been deferred 2 times, and now it is applicable for financial year 2021-22 onwards. And if you talk about Schedule 3 changes also, so it will also be applicable for financials, which will be preparing for the financial year 21-22. So the first question which will come to my mind and the minds of the participants over here is, then why we are discussing it now so early, as we all will be preparing the financials for 21-22 next year, maybe in May, June, July, and the CARO reporting will also be applicable next year only. Friends, basically 2 reasons are there. If we talk about in terms of Schedule 3 amendments, if we need to understand all the thing now, because
when we will be reporting with the amended Schedule 3 for financial year 21-22, we have to report for previous year figures also. So the previous year figures will be coming for the financial year 2021. So we need to understand what all changes has been done. Is there any issue with my voice? Someone is writing in the chat that he is not here listening. Hello. No, you all good. Carry on. Thank you. Thank you. So, as we will be reporting, the revised Schedule 3 will be applicable for the financial year 21-22 for the first time. But we also have to report the previous year figures in the revised format when next year we will be reporting. So it is better we should learn and understand what are the changes that has been introduced in Schedule 3, and we collect the data during the audit of this year when we will be auditing for the financial year 2021. It would be better that we prepare according to the Schedule 3 few data which will be requiring next year for previous year reporting, because altogether if we try to collect it, definitely we can collect it next year as well, but the time involved will be, again, when we will be analyzing the data this year, it will be better if we collect those data now. Talking about Caro, why we are discussing Caro now is definitely Caro again is applicable from for the financial year 21-22, which we will be reporting next year. But discussing Caro now is important because few changes in Caro has been implemented that we will be reporting next year, but we need to make our clients aware now so that they do these things correctly throughout the year, and so that it will be easy and it will be better report us. Yes, Sorry yes, to interrupt you. Now you are co-host, you can share the screen. Sure. Yeah, thank you so much. And we also need to understand the background of why Caro has been changed so rapidly, and why Schedule 3 changes has been introduced, and day by day government is increasing the stringency in the regulatory framework, friends. Nothing happens without a reason, friends. And I would say we have invited these troubles over the year. And the message from the government now is, friends, loud and clear. They are aware of all misdeeds we are doing. They are more aware than us now, and they want to catch hold of each and everything. So with that background note, we will first start with the Caro 2020, and thereafter we will discuss these amendments in Schedule 3, friends. So when we will be discussing Caro 2020 and Schedule 3, why we have kept both the topics simultaneously is under amendments under Schedule 3, many provisions or many changes has been brought as a byproduct of Caro, friends. So जो हम लोग changes देखेंगे कि Caro में changes आया है, बहुत सारे changes हम देखेंगे Schedule 3 में भी आया है. तो one by one हम discuss करते हैं Caro. So what we will be discussing in the changes in Caro, friends, will have a comparative analysis of Caro 15, Caro 16 and Caro 20, what had been the objective, on which companies Caro 2020 will be applicable, and then the matters which we need to be include in our Caro reporting. So Caro 2020 was notified on 25th of February 2020, friends. Earlier it was applicable for financial year 2021, and then it was deferred, and now it is applicable for financial year 21-22 onwards. Guidance note on Caro was issued in June 20, and currently, as I told, it will be effective from 1st of April 2021, friends. So this is a background and history of Caro. When for the first time in 1976, it was introduced at Mao Caro 1975, which was having 22 points, friends. And after 13 years, it was changed. And then in 1988, with 27 points, Mao Caro 1988 was introduced. Then what I have studied during my student career was Caro 2003. And which was applicable from 1st of July 2003, having 21 points, and it was also there for 12 years. So we can see the time period till
till when these CAROs were applicable and were amended after a gap of 12 years, 13 years and 15 years. Thereafter CARO 15, CARO 16 and CARO 20 now. It was, these are being changed after 1 year and 4 years. So we can see how rapidly things are changing, and now the government are not waiting for long, and as and when they see that a change is required in a statute or change is required in a reporting standard, they immediately change it, even though it has been changed in the previous year. They don't bother about that, and that friends can be one of the reasons for such frequent changes. Now a comparative study between all the three CAROs or all the three recent CAROs which were introduced under New Companies Act 2013, CARO 2015, which was having 11 points, then CARO 2016, and then CARO 2020. Friends, again, I am receiving comments that voice is not clear. Gopal Bhai, am I audible properly now? You are audible. Okay, thank you. Yes, yes, Mayur, yes, Mayur. Yes, carry on. Yeah. तो फ्रेंड्स अपने देखेंगे कारो 2015, 16 और 20 में मोर और लेस कारो 2015 का मोस्ट ऑफ द पॉइंट हैज बीन रिटेन्ड इन 16. एक दो पॉइंट जो चेंज हुए थे, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट हटाया गया था कारो 16 में, जो कि 15 में था, और उसके पीछे ये लॉजिक है कि आईएफसी मैंडेटरी कर दिया गया था उस समय ऑल दी कंपनीज को. तो आईएफसी ऑल टुगेदर पूरे इंटरनल कंट्रोल का एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट अपने इशू करते थे, तो कारो से ये पॉइंट हटा दिया गया था. देन दे हैड रिमूव्ड एक्यूमुलेटेड लॉसेस पॉइंट एंड गारंटी वाले पॉइंट को लोन में उन्होंने क्लब कर दिया था. अब व्हेन वी कंपेयर कारो 16 एंड कारो 20, देन अगेन most of the point has been retained with few changes there and various new points has been introduced. जैसे कि हम देखेंगे transaction not recorded in books has been introduced. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट हट चुका है कारो से, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में काफी चेंज किया गया था. जो अबव थ्रेशोल्ड लिमिट, जो 11% के अबव अगर हम रेम्यूनरेशन देते हैं, तो अर्लियर वी हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच वाज डेलीगेटेड टू द रीजनल डायरेक्टर. नाउ द पावर हैज बीन गिवन टू द company only, to the shareholder of the company, and after passing special resolution, these managerial remuneration can be given above the threshold limit. So now no more requirement of government approval is there. So this point was not much more of relevance over here. So they have removed managerial remuneration point from CARO. Then internal audit system has been introduced, a new point. Cash loss point has been introduced, which was there in, if you remember, this point was there in CARO 2003, friends. Then a much hyped resignation of auditor we have witnessed last year, that many listed companies auditor have resigned, and due to that SEBI has come up with a new regulation related to resignation of auditor. So from there a point has been introduced in CARO related to resignation of auditors. Then CSR, a lot of changes has been introduced in CSR provisions, friends, and we will discuss when that point come up. So CSR, for CSR there is a specific point over here. Friends, before proceeding further, a question over here. So, as per you all, friends, अगर सब participate करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम भी कुछ सीखेंगे, आप लोग से interaction होगा तो better points निकल के आएंगे. तो I request everyone to please participate. So a question over here, friends, CARO, whether CARO is a reporting requirement or whether it binds the auditor to further investigate on things and then report. क्या लगता है, ये एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है या अपने को कारो के रिपोर्टिंग के लिए फर्दर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करने की दरकार है? Vikram Jalanti is saying it is an investigation. We need to further investigate. Ansul ji and Vishwanath ji is telling it is a reporting requirement. Most Amod ji is also saying it is a reporting requirement. So friends, yes, I agree to most of you. It is a reporting requirement. Generally, it does not ask for additional investigation to us. Though whether CARO is applicable or it is not applicable, most of the things which we used to report earlier, we have to cover it in our audit.
even though Caro is not applicable. And these specific questions, we need to report on these specific questions. But when we'll be looking at the points introduced in new Caro, I'll a bit differ from my perspective, because now few points required additional investigation as well, because those points we would not have witnessed or we would not have checked had it been the situation of only a normal audit and the company on which Caro is not applicable. Many of those points we will not be checking. One of the example, we can say the quarterly statements is the company submitting to the banks. So as a normal auditor, if a Caro is not applicable on the company, we would have not checked it. But now for reporting of Caro, we have to do some additional investigation on that and then report. So as the law is amending, as new Caro it is evolving, so the objective behind it also is also changing. So from reporting to investigating. So now we will, friends, see what is the applicability of the Caro 2020. So there is no change in the applicability if we compare it with just a second. हाँ, तो सर एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो कारो 2020 में एप्लीकेबिलिटी में अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है। तो पहले जो कारो 2016 के एप्लीकेबिलिटी नॉर्म्स थे, एज इट इज कारो 2020 में एप्लीकेबल है। तो क्या एप्लीकेबिलिटी नॉर्म्स है फ्रेंड्स? सर ये एप्लीकेबल है टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल है। कारो इज आल्सो एप्लीकेबल टू ऑडिट्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी। इफ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ ब्रांचेस तो भी कारो एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था कभी भी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम कारो 2020 के पॉइंट नंबर 21 इफ वी विटनेस, सो दैट the last point of the Caro, only one point is applicable for consolidated financial statement. वो क्या point है, जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो डिस्कस करेंगे. So basically now Caro is also applicable to CFS, consolidated financial statements, but only the last point. Remaining 20 points are not applicable to consolidated financial statements. तो बाकी एप्लीकेबिलिटी की अगर अपने बात करें तो सर कुछ एंटिटीज को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है कारो के एप्लीकेबिलिटी से. व्हाट आर दोज एंटिटीज? बैंकिंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, इंश्योरेंस कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 8 कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड, 1 पर्सन कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड. तो ये सारे एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो. देन स्मॉल कंपनीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट. सो स्मॉल कंपनीज पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है फ्रेंड्स. We all know the definition of a small company has been enlarged and the scope of small company has widened now. From 1st of April 2021, section 2 subsection 85 has been amended. So the revised definition, any company having paid up capital of less than 2 crores and turnover of less than 20 crores, and there are other 2-3 conditions. If the company fulfill all those conditions, so Caro will that company will become a small company and Caro will not be applicable. Friends, when we read section 2 subsection 85, we, along with looking at these two threshold of paid up capital and turnover, we also need to look at the other 2-3 points over there, which says that a holding company or a subsidiary company cannot be a small company. So that also we need to keep in mind. So any company which is a holding company or a subsidiary company cannot be a small company. So those company will not have these exemptions. Now, if our company is not falling under any of this clause, so friends, अगर स्मॉल कंपनी में फॉल कर गया तो फर्दर अपने सेलेक्ट एक लास्ट जो एग्जेम्पशन है सेलेक्ट क्लास ऑफ कंपनीज के लिए एग्जेम्पशन है. तो अगर स्मॉल कंपनी में हमारी कंपनी फॉल कर जाती है तो फर्दर हम कुछ चेक करना ही नहीं है, एग्जेम्प्टेड है और कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन अगर स्मॉल कंपनी नहीं है या एनी ऑफ दिस कंपनी में फॉल नहीं करती है हमारी कंपनी, तो अपने लास्ट पॉइंट में जाएंगे, दैट इज सेलेक्ट क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी. और सेलेक्ट क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी में जाएंगे और उन पे फिर वो देयर आर 5 पॉइंट्स अंडर दिस. इफ अ कंपनी इज फुलफिलिंग ऑल दोस 5 पॉइंट्स, देन दैट कंपनी विल बिकम
can avail the exemptions of Caro. So what are those 5 points? A company which is not a subsidiary of a public company, which is not a holding of a public company, which is having paid up capital plus reserves over here, is not exceeding 1 crore, total borrowings is not exceeding 1 crore, and total turnover is less than 10 crores. So if a company is fulfilling all these 5 criteria, then this exemption will be applicable. So friends, ये जो exemption criteria है, ये पुराना है, स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन अमेंड हुआ उसके पहले का है, तो इसीलिए हो सकता है वी एक्सपेक्ट कि इसमें फर्दर कुछ चेंजेस आए या ऑल टुगेदर ये हट जाए, बिकॉज बहुत आफ्टर द अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, ये जो सेलेक्ट क्लास ऑफ कंपनीज के लिए जो एग्जेम्पशन है प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट अब नहीं रहा है, बिकॉज व्हेन विच वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ कि सर 2 करोड़ का पेड अप एंड 20 करोड़ का टर्नओवर के अगर नीचे है प्लस 2 क्लॉज और है तो अपने स्मॉल कंपनी में फॉल कर जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप उन कंपनियों के लिए ये सेलेक्ट क्लास वाला रेलेवेंट रहेगा जो स्मॉल कंपनी में नहीं फॉल कर रहे हैं, ड्यू टू द रीजन दैट इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड का अगर होल्डिंग या सब्सिडरी है तो ये वाला एग्जम्पशन भी अवेल नहीं कर पाएंगे वो कंपनी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सब्सिडरी या होल्डिंग है तो फिर वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे, तो फिर वो सेलेक्ट क्लास ऑफ कंपनी का एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं। तो दीज आर द clause related to applicability of Caro. Now we will, friends, move to the points which need to be reported under Caro. There are 21 points. Before going into Caro, I would like to draw your attention on section 143(1) of the Companies Act, friend. Sir, Caro आप पे applicable हो नहीं हो, but 143(1) के जो 6 points हैं, ये as a auditor हमें report करना है। What 143(1) states that among other matter inquire in the following matter, namely ये 6 मैटर में हमें इंक्वायर करना है, and if there is a negative remarks on any of these 6 matter, so as an auditor we need to report for every company whether Caro is applicable or not applicable। इन 6 points को हमें देखना है and report करना। What are these 6 points, friend? First of all, whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured, and whether the terms are not prejudicial to the interest of the company। तो सर कंपनी जो सिक्योर्ड लोन दे रही है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है कि नहीं, ये हमें चेक करना है एज अ ऑडिटर, एंड देन वी हैव टू रिपोर्ट इट इफ देयर इज अ नेगेटिव रिमार्क्स। देन कोई भी ट्रांजैक्शन ओनली बुक एंट्री पर्पस के लिए हो रहा है क्या, एंड विच इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वी नीड टू रिपोर्ट दोस ट्रांजैक्शन एज वेल, फ्रेंड्स। देन whether the company not being an investment company or banking company, and whether so much of the assets of the company as consist of share, debenture and other security have been sold at a price less than that at which they were purchased। So sir, investment and banking company छोड़ के कोई और companies है और वो shares, debentures या other securities को sell कर रही है at a lower price at what it was purchased, तो सर यहाँ पे as auditor हमें report करना है। And friends, I am again saying that it is not part of Caro. Even if Caro is not applicable, we need to report on these points। Next, point number 4, whether loans or advances made by the company have been shown as deposit। अगर deposit में show किया गया loans and advances को तो यहाँ पे report करना है। Then 5th point, whether personal expenses have been charged to revenue account, then we have to report। And the last one, where it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received, कैश आया है कि नहीं, एंड अगर कैश नहीं आया है तो द पोजीशन एज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस इज करेक्ट और नॉट। तो इसका अगर इफ कैश इज रिसीव्ड देन दैट हैज टू बी रिपोर्टेड, अगर कैश नहीं आया है तो द ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ दैट इज फाइंड और नॉट दैट नीड टू बी रिपोर्टेड। तो वी नीड टू केयर ऑन दिस पॉइंट, फ्रेंड्स। इसको ध्यान देते हुए अगर एप्लीकेबल है किसी भी हमारे ऑडिटिंग क्लाइंट को तो इन्हें रिपोर्ट करना है। Back to the main topic, which is Caro. One by one, we'll be discussing the point. We may skip. I will be skipping those points जिनमें कुछ भी changes नहीं आया है या material कुछ change नहीं आया है as compared to 2016. Because after Caro, we need to discuss Schedule 3 as well. एक एक करके points उठाते हैं, friends. सबसे पहला point is related to fixed asset, जिसको अभी change करके अपने PPE बोलते हैं, property, plant and equipment. So the first point जो कि continued point है,
which talks about proper records, whether company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situations of PPE. And what do we understand by proper records, friends? So proper records में ये सारी चीजें होनी चाहिए. Then only we will be able to say that it is proper record or not. जो की बात करता है गाइडेंस नोट बोलता है सर सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एसेट्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स होना चाहिए, ईयर ऑफ परचेज मेंशन होना चाहिए, इफ एप्लीकेबल कंपोनेंट अकाउंटिंग होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल लाइफ. बेसिकली अपने पास अपडेटेड एफएआर होना चाहिए. अगर अपडेटेड एफएआर नहीं होगा तो ये सारे डिटेल्स अवेलेबल नहीं होंगे. तो देन if updated FAR is there as per all these details, then only we can as an auditor can state that proper records are maintained by the company. तो ये पुराना पॉइंट है, कंटिन्यू पॉइंट है. एडिशनली फ्रेंड्स इसके अलावा सेम पॉइंट नंबर बी अंडर फिक्स्ड एसेट इंट्रोड्यूस किया है, which is for intangible assets. So here we need to report whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets, friends. Now next point is over here is, ये भी पुराना पॉइंट है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रही है कि नहीं. अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन ओवर हियर इज द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट. It is not the job of the auditor that auditor do a physical verification. But what is our job over here is the process used for verifying the asset, the process used by the management. तो सर उसका इंटरवल रीजनेबल है कि नहीं एंड वो प्रोसेस रीजनेबल है कि नहीं. तो सर हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के टाइम हम एज अ ऑडिटर या हमारे लोग वहां मौजूद नहीं थे. हमें एज अ ऑडिटर वी नीड टू चेक द प्रोसेस इन्वॉल्व, वी नीड टू इंटरेक्ट विद द टीम, we need to check the documentation and we need to check whether any discrepancies were found during verification of fixed asset by the management and उनका treatment क्या हुआ. ये सारी चीजें एज ऑडिटर हमें देखनी पड़ेगी. फर्दर एक कारो 16 में एक नया पॉइंट आया था कि whether title deeds of immovable property are held in the name of the company or not. तो वो रिक्वायरमेंट था, बट देन the committee and government were feeling कि इस पॉइंट पे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है. तो इसीलिए नाउ दे पॉइंट वही है बट एक स्पेसिफिक शेड्यूल उन्होंने बना के दे दिया है जहां पे कि रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज जिनके टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स इसके. से प्राइवेट कंपनी एक फर्म या एलएलपी कन्वर्ट हुआ है कंपनी में, या फिर डायरेक्टर या कोई भी इन काइंड कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी में लाया है एज अ कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है एंड कंपनी ने फिर नेम चेंज नहीं कराया ड्यू टू एनी रीजन. तो इन सब केसेस में ऐसा हो सकता है. देयर कैन बी एनी अदर एग्जांपल आल्सो कि कंपनी के नाम पे नहीं है टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इन सब केसेस में हमें रिपोर्ट करनी होगी फ्रेंड्स यहाँ पे. एंड दे अगेन स्पेसिफाइड द टेबल ओवर हियर जहाँ पे अपने को डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी डालना है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू किस नाम पे हेल्ड है वो डालना है, और whether that person is a promoter, director or relative of any employee. डायरेक्टर का रिलेटिव है, एम्प्लॉई है कंपनी का, या प्रमोटर का रिलेटिव है, ये डिटेल्स स्पेसिफाई करना है. एंड कब से ये कंपनी के नाम पे नहीं है, कब से ये एसेट्स कंपनी हेल्ड कर रही है और ये किसी और के नाम पे है. करेक्ट, विक्रम जी बोल रहे हैं प्रोप्राइटरशिप कन्वर्टेड इनटू कंपनी. सो उस केस में भी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर एसेट्स का के नाम को चेंज नहीं किया गया, टाइटल डीड में चेंज नहीं कराया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में. एंड फर्दर लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. सो हमें रीजन भी स्पेसिफाई करना है फ्रेंड्स. देन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट फर्दर 2 न्यू पॉइंट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. One is related to Binami properties and second one is related to revaluation funds. So what is the fourth point over here? Whether the company has revalued its PPE or intangible assets or both during the year, and if so, whether revaluation is based on the valuation by a registered value. So friends, as we all know, from 1st of Feb 2019, any valuation under Companies Act is mandatory to be valued by a registered valuer only. So now they are asking कि अगर कोई भी revaluation हुआ है whether PPE का या intangible asset का, तो वो revaluation has been based on the valuation of a registered valuer है कि नहीं. तो ये स्पेसिफाई तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक registered valuer का रिपोर्ट लिया गया था कि नहीं at the time of revaluation. And further specify the amount of changes if change of 10% or more
in aggregate of net carrying value of each class of property, plant and equipment और intangible assets. तो फ्रेंड्स each class of assets को यहाँ पे अगर 10% से above changes है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. तो फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास ऑफ एसेट्स ओवर हियर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्लास ऑफ एसेट्स के से अपने क्या समझते हैं? क्या एक टाइप से कंपनी 4 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, कंपनी स्टील बना रही है, एल्यूमिनियम बना रही है एंड कॉपर बना रही है. तो क्या रॉ मटेरियल रिलेटेड टू रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड रिलेटेड टू कॉपर एक क्लास होगा, स्टील एक क्लास होगा, एल्यूमिनियम एक क्लास होगा, या रॉ मटेरियल आर वन क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी एसेट्स रिलेटेड टू स्टील कॉपर एक क्लास होगा, या फिर यहाँ पे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फ्रेंड्स? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वाइज क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज आएंगे और उसमें अगर ओवरऑल 10% का अगर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी में 10% का डिस्क्रिपेंसीज आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग में 10% का डिस्क्रिपेंसीज आ रहा है, तो वो रिपोर्ट होगी. एंड एज वेल एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे रिपोर्ट करना है. द लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज रिलेटेड टू बिनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी, और अगर है तो अपने को यहाँ पे रिपोर्ट करनी है. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पीपीई, दैट इज फिक्स्ड एसेट. अगेन द सेकंड पॉइंट व्हिच इज इन्वेंटरी. तो इन्वेंटरी में अगेन जो पहले से पूछ रहा था, द रिक्वायरमेंट वाज कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड. Again, over here, I would like to state that inventory का भी physical verification, the liability to do physical verification is of the management. We have to report proper procedure has been involved in the conducting of physical verification of inventory या नहीं. सबसे पहले तो हमें SOPs देखने पड़ेंगे कि सर SOP क्या है मैनेजमेंट का PV करने के लिए. और सबसे पहले तो SOP we as an auditor need to satisfy with the SOP. क्या है वो SOP प्रॉपर है कि नहीं. अगर एसओपी प्रॉपर नहीं होगा तो सर उस एसओपी को फॉलो करके फिजिकल वेरिफिकेशन कभी प्रॉपर हो ही नहीं सकता है. तो सर फिजिकल वेरिफिकेशन का एसओपी प्रॉपर है कि नहीं, सबसे पहले वो सुनिश्चित करना पड़ेगा एज ऑडिटर हमें से. और वो डिपेंड करेगा अलग अलग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, डिपेंड किस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका एसओपी क्या है, उसका प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है. सिर्फ और सिर्फ सर एक से सर नॉर्मल रॉ मटेरियल है, ट्रेडिंग कंसर्न्स है एंड से दे आर डीलिंग इन व्हीट, अनसन व्हीट्स की हजारों हजार बोरियां हैं, सो वो काउंट करना इजी है. उसके लिए सिंपल एसओपी भी नहीं हो सकता है, सिंपल काउंटिंग से अपने वेरीफाई कर सकते कि प्रोसेस प्रॉपर है कि नहीं. पर जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्रीज रहते हैं, जहाँ पे कि से मिनरल्स आर इन्वेंट्रीज, मे बी सैंड, बॉक्साइट और एनी टाइप ऑफ मिनरल्स आर इन्वेंट्री, एंड सर वो बड़े बड़े फील्ड्स में फेंके हुए रहते हैं, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है. या फिर बड़े बड़े टैंक्स में सर क्रूड ऑयल्स एंड पेट्रोलियम्स आपके रॉ मटेरियल अगर हैं तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो वहां पे देखना है. सर सिंपल ये मतलब सिंपली इन सब का सर यहाँ पे सर फिजिकल वेरिफिकेशन में अकाउंटिंग के साथ साथ सर हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी अध्ययन करना पड़ता है. बिकॉज सर अपने इस टाइप के मिनरल्स एंड ऑल का पीवी को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द basically the component of these assets, these raw material, then only we will be able to do just that whether the PV has been done properly or not. So physical verification से related inventory again management physical verification करेगा, and in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. Again over here whether 10% or more in aggregate of such class of inventory were noticed, and if so that need to be reported. एंड रिपोर्टिंग फ्रेंड उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये भी रिपोर्ट करना है. अगेन क्लास ऑफ इन्वेंट्रीज अगर अपने देखने जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रेंड्स. तो ये ES2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में क्लास को डिफाइन किया है कि रॉ मटेरियल ऑल टुगेदर एक क्लास हो जाएगा, वर्क इन WIP एक क्लास हो जाएगा, फिनिश गुड्स एक क्लास होगा, स्टॉक एंड ट्रेड एक क्लास हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी सो 10% का डिस्क्रिपेंसी एक क्लास में आएगा तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं, वो यहाँ पे अपने को डिस्क्लोज करना है फ्रेंड्स. देन इससे रिलेटेड फर्दर जो नए पॉइंट्स आए हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड जो सेकेंड एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द टाइम द कंपनी हैज बीन सैंक्शन
वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो सर 5 करोड़ से ज्यादा का अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन किया गया है क्या एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स ऑल टुगेदर देखना है कि सर ऐसा नहीं है कि 4 बैंक से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का लिमिट सैंक्शन हुआ है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऑल टुगेदर इफ द लिमिट इज 5 करोड़ एंड अबव देन दिस क्लॉज विल बी अट्रैक्टेड एंड वी नीड टू रिपोर्ट। 2 पॉइंट यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है सैंक्शन हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स अगर ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन नहीं हुआ है तो इस पॉइंट में रिपोर्टिंग नहीं होगा। The reporting will only be attracted if the sanction has been done during the year. First thing, then we need to see all together, including all the banks and financial institutions. जो भी sanction किए गए हैं उस कंपनी को total sanctions अपने देखेंगे। The third point in this over here is on the basis of securities of current asset. तो जो security है friends, वो current asset का security होना चाहिए। On the basis of securities of current asset, तो अगर करंट एसेट के सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं कोई भी लोन सैंक्शन हुआ है तो या वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुआ है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ये अगर ये 3 पॉइंट अपने फुलफिल करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुआ है सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिला के मोर देन 5 करोड़ है, एंड द थर्ड पॉइंट सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल लोन सैंक्शन हुआ है, तो अपने आगे देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान देने वाली है कि सर सैंक्शन में क्वेश्चन आता है कि सर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में अपने जानते होंगे, अपने जो बैंक ऑडिट में भी चेक करते हैं कि सर एवरी ईयर रिन्यूअल होता है वर्किंग कैपिटल लिमिट का। तो सर क्या रिन्यूअल को अपने सैंक्शन ट्रीट करेंगे, वेदर रिन्यूअल इज सैंक्शन या फिर अगर सिर्फ सैंक्शन जो ओरिजिनल सैंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर इंटेंट इज रिन्यूअल विल बी कवर्ड इन सैंक्शन, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर रिन्यूअल भी हुआ है तो वो भी सैंक्शन का पार्ट, दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज सैंक्शन ओनली, एंड अकॉर्डिंगली अगर ड्यूरिंग द रिन्यूअल भी हुआ है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट हाँ, तो फ्रेंड्स अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा सैंक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर बाय एनी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड बहुत जगह इस पॉइंट में वायलेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये वन ऑफ दोज पॉइंट है फ्रेंड्स जो हमें क्लाइंट्स को अभी से अवेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि सर क्वार्टरली रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स अभी सबमिट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा, उसके बाद क्लाइंट्स अगर लोन लेके रखे वर्किंग कैपिटल लिमिट तो अभी दे विल बी सबमिटिंग इट टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। So what we need to report, friends, whether the quarterly returns or quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts or not. फ्रेंड्स अभी तक तो अपने क्लाइंट का चेक नहीं करते थे कि वो क्या सबमिट कर रहा है क्या नहीं सबमिट कर रहा है, तो हमें पता नहीं होता था कि वो सही सबमिट कर रहा है कि नहीं, बट ड्यूरिंग बैंक ऑडिट हम दूसरे क्लाइंट को यानी जो बैंक के बोरोवर्स हैं उनका चेक करते थे, एंड डेफिनेटली हम में से हर कोई सर डिस्क्रिपेंसीज मिली है और हर बार मिलती है इस पॉइंट पे, जहाँ पे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 20 लाख 25 लाख 50 लाख का इन्वेंट्री दिखता है जिसके बेसिस पे लोन दिया हुआ है, एंड जब हम बुक डेट स्टेटमेंट या स्टॉक स्टेटमेंट देखते हैं तो मे बी मल्टीफोल्ड 10 टाइम्स 12 टाइम्स 5 टाइम्स हायर दिखाया हुआ रहता है। तो ऐसे कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज अगर मिलेंगे तो हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये हमें मिलेगा कहाँ से, सबसे पहला बात है तो हमें अभी केसेस वेयर स्टॉक स्टेटमेंट फाइल मंथली, यस मैं आ रहा हूँ, अजय जी पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर मंथली जहाँ फाइल होता है, फ्रेंड्स मंथली फाइल होने दीजिए, हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो फाइल हुए हैं वो देखने हैं, यानी कि अगर एज अ ऑडिटर हमें जो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वो क्वार्टर यानी जून मंथ का जो स्टॉक स्टेटमेंट फाइल हो रहा है वो मंथली हर मंथ सबमिट कर रहा है, बट जून मंथ का जो स्टॉक स्टेटमेंट फाइल हुआ है हमें वो चेक करना है वेदर वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है कि नहीं, एंड अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। होप आई एम क्लियर ओवर हियर। तो सिर्फ हर क्वार्टर का स्टेटमेंट्स को यहाँ पे हमें चेक करके रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कॉपी ही रिटेन नहीं करते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बैंक को देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लाइंट्स को बोलना पड़ेगा कि सर आप एक कॉपी रिटेन कीजिए, एक्नॉलेज
सबसे बेस्ट होगा एक्नॉलेज्ड कॉपी, जो बैंक को हम सबमिट कर रहे हैं उसका एक एक्नॉलेज्ड कॉपी रिटेन कीजिए, जो कि हम ऑडिट के टाइम चेक कर पाएंगे, एंड देन ओनली विल बी एबल टू मैच फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट कि वहां पे कोई डिसएग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट है कि नहीं। तो ये सारे चीज हमें इमीडिएटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट्स को, और उन्हें बोलना पड़ेगा सर कि एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सबमिट कीजिए, अदरवाइज हमें कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इस पॉइंट की। एंड यहाँ सबसे बड़ा एक और पॉइंट यहाँ पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा एज अ ऑडिटर इस कि सर यहाँ पे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इन्वोक करना पड़ेगा क्या। अगर हम एज अ ऑडिटर यहाँ पे नेगेटिव रिमार्क्स दे रहे हैं कि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस क्वार्टरली डेट बुक डेट एंड स्टॉक स्टेटमेंट जो कंपनी सबमिट कर रही है बैंक को, उसमें ह्यूज डिस्क्रिपेंसीज है, तो सर सेक्शन 143(12) जो कि ये एज अ ऑडिटर हमें बात भी करता है कि हमें अगर हमने ड्यूरिंग आवर ऑडिट हम अगर कोई भी फ्रॉड हमारे नजर में आता है बाय द कंपनी, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। वी नीड टू फाइल फॉर्म एडीटी 4 विद इन 15 डेज और 45 डेज, 2 लिमिट है। तो क्या सर वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि नहीं? तो सर ये सारी बातें इस पॉइंट में इन्वॉल्व है। देखने में तो छोटा सा पॉइंट लग रहा है कि देखेंगे डिस्क्रिपेंसी नहीं है, बट कनेक्टेड बहुत सारे इश्यूज हैं। सर यहाँ संजीव जी बोल रहे हैं बहुत सारे क्लाइंट ईमेल के थ्रू स्टेटमेंट्स भेज रहे हैं, तो सर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको ईमेल का कॉपी, प्रिंट कॉपी या वो ईमेल आपको या तो सीसी मार्क करवा लीजिए एज ऑडिटर, और अगर सीसी नहीं भी मार्क कराते हैं तो उस मेल को फॉरवर्ड करवा लीजिए, एंड देन एट द टाइम ऑफ ऑडिट आप चेक करेंगे। अमन जी यहाँ पे पूछ रहे हैं इज दिस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इन एवरी केस और ओनली फॉर द न्यू लोन सैंक्शन अबव 5 करोड़। सर सैंक्शन मतलब रिन्यूअल भी है, और वर्किंग कैपिटल रिन्यूअल हर साल होता है, तो आपका अगर पुराना भी सैंक्शन है तो अभी भी कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन मोर देन 5 करोड़ है तो कारों में रिपोर्टिंग है। बट सर इससे रिलैक्स होने की बात नहीं है, क्योंकि जब अपने अभी शेड्यूल 3 देखेंगे सर, तो वहां पे सेम पॉइंट है शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग में, बट वहां पे 5 करोड़ का पॉइंट नहीं है। यानी छोटा से सोचा वर्किंग कैपिटल अगर सैंक्शन है और वहां पे अगर डिस्क्रिपेंसीज है, तो सर एज ए ऑडिटर हमें ऑडिट रिपोर्ट में नहीं रिपोर्ट करना है, बट कंपनी को रिपोर्ट करना है। एंड ऐसी नहीं है कि छोटे से छोटे कंपनियों को रिपोर्ट करना है, क्योंकि शेड्यूल 3 अमेंडेड शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज। तो जब हम शेड्यूल 3 देखेंगे तो सर वहां पे हम ये चीज देखेंगे कि सेम पॉइंट वहां पे है, बट वहां पे 5 करोड़ की लिमिट ही नहीं है। तो ये 5 करोड़ का लिमिट तो एज ए ऑडिटर हमें बताना है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को, मैनेजमेंट को विदाउट एनी लिमिट छोटा से छोटा अगर डिस्क्रिपेंसीज है तो सुओ मोटो उन्हें रिपोर्ट करना है। एंड वी ऑल नो कि छोटी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, तो अल्टीमेटली हमें ही रिपोर्ट करना पड़ेगा इसे। जो भी फाइनेंशियल्स बना रहा है कंपनी का, उन्हें ये नोट्स टू अकाउंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है 5 करोड़ की। तो इन्वेंट्री वाला यही पॉइंट था फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना चाहिए इस पॉइंट के बारे में क्लाइंट्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लोन गिवन बाय द कंपनी। फ्रेंड्स, अंडर दिस पॉइंट अर्लियर इन कारो 2016 इफ यू सी द रिक्वायरमेंट्स फॉर टू रिपोर्ट अबाउट द लोन्स covered in the registered maintained under section 189. So registered under section 189 is for the related party transactions. तो सर related party transactions मतलब related party को तो लोन दिया गया है, उसकी रिपोर्टिंग की जाती थी पहले। Sorry. Now they have removed the requirement of, they have removed the coverage under section 189. So now any loans given by the company need to be reported in over here. So whether during the year the company has made any investment, provided any guarantee or security, or granted any loans or advance or advances in the nature of loan, secured or unsecured हो, अगर कंपनी ने दिया है तो इस क्लॉज ऑफ कारो 2020 के अंदर रिपोर्टिंग होगी। फ्रेंड्स, क्या नया टर्म जो यहाँ पे एडवांसेज इन द नेचर ऑफ लोन्स है। लोन्स तो नॉर्मली देख लेते हैं, बहुत जगह क्या होता है कंपनियां सर एडवांस में दिखाती है, बट व्हेन वी लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्यू, जब हम ट्रांजैक्शन के पीछे देखते हैं, बिहाइंड द ट्रांजैक्शन इफ यू सी, तो सर वो समझ में आता है कि है तो ये लोन, बट है तो ये एडवांसेज, बट नेचर इसका लोन का है। तो नेचर यहाँ
एडवांसेस का नेचर लोन का है तो वो यहाँ वो भी कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एडवांसेस अगर दे के रखा है तो अपने यहाँ पे चेक नहीं करेंगे उसको, उसके एडवांसेस को भी चेक करना है। पता कैसे चलेगा या एग्जाम्पल क्या हो सकता है एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन? सर कंपनी का टर्नओवर से या फिर एक कंपनी का एक रॉ मटेरियल है जिसका रिक्वायरमेंट पूरे साल में 5 लाख रुपए का ही वो रॉ मटेरियल लगता है, से लाइम लगता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को बहुत कम रिक्वायरमेंट रहता है, या विटामिन लगता है बहुत सारे फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को, बट रिक्वायरमेंट बहुत कम रहता है, बहुत कम मात्रा में वो यूज होता है ड्यूरिंग द ईयर। तो उसे पूरे साल में 5 लाख रुपए का विटामिन ही चाहिए कंपनी को, और कंपनी जो वेंडर है जिससे कंपनी विटामिन प्रोक्योर करती है उसको सर 2 करोड़ का एडवांस देके रखी है। तो डेफिनेटली सर प्रॉपरली अपने इसको अगर विटनेस करेंगे तो ये सर एडवांस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर ड्यूरेशन इतना लंबा है कि सर वो 40 साल में भी कवर अप नहीं कर पाएगा पूरा पैसा, या पूरा माल सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कंपनी को। तो सर ऐसे एडवांसेस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, लोन दिया है, गारंटी दी है, तो सर क्या क्या रिपोर्ट करनी है कंपनी को? सबसे पहले वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और provided advances in the nature of loans or issued guarantee or provided security to any other entities। अगर दिया है, सबसे पहला रिपोर्टिंग the aggregate amount during the year and balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantee or security to the joint venture, subsidiary and associate। तो सर जितना लोन एंड एडवांसेस दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर और बैलेंस आउटस्टैंडिंग है टू बेसिकली subsidiaries, joint venture and associates, वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। एंड सेकेंड पॉइंट द अमाउंट aggregate amount during the year and balance outstanding at the end of the balance sheet date with respect to such loans and advances and guarantees or securities to parties other than subsidiary, joint venture and associate। तो दोनों को अलग अलग करके दिखाना है। यहाँ पे पूरे डिटेल अपने को देना पड़ेगा कि इस तरीका से अपने को डिटेल्स बना के देना पड़ेगा बेसिकली फ्रेंड्स, कि गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांसेस किन किन को दिया गया है, एग्रीगेट कितना दिया गया है और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंड अदर्स के लिए कितना कितना दिए हैं, एंड अदर देन सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर्स के लिए कितना कितना दिया है। दोनों पॉइंट, कितना ड्यूरिंग द ईयर हमने डिसबर्स किया है एंड या इन्वेस्ट किया है, एंड व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट और लोन, ये पॉइंट है। Further, whether the investment made, guarantee provided, security given, and the terms and conditions of loans and advances in the loans are not prejudicial to the interest of the company। Friends, ये पहले भी ये पॉइंट था, इसमें जरा सा चेंज किया गया है। तो सर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर वो प्रिजुडिशियल है कि नहीं, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो प्रिजुडिशियल कैसे पता चलेगा? सर कंपनी ने कंपनी का कॉस्ट अगर अपने देखिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अपने देखे, कंपनी लोन लेके रखी है, से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट रेट कंपनी का 10% 12% का है, एंड कंपनी ने फर्दर लोन दिया है, टेम्पररी में भी दे के रखा है, बट 6% है, 4% है, तो वो हो सकता है प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करती है जिसका पास्ट रिकॉर्ड है कि कभी कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, एंड वो कंपनी एक लॉस मेकिंग है, उसमें अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, तो वी नीड टू चेक। इन सब सिनेरियो में एक प्राइमा फेसी विजन आता है कि ये सब ट्रांजैक्शन प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। देन इस सिचुएशंस में अपने को एज अ फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एंड देन डिटरमाइन करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शंस प्रिजुडिशियल है कि नहीं, क्योंकि फिर अपने को मैनेजमेंट का व्यू लेना पड़ेगा इसमें, एंड मैनेजमेंट हो सकता है वहां पे हमें अपने रिप्रेजेंटेशन या अपने डिस्क्रिप्शन से सेटिस्फाई कर सके, बिकॉज वी डोंट नो द बैकग्राउंड। हो सकता है मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव हो कि सर गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी अच्छा करने वाली है, दीज आर द रीजंस, तो हो सकता है वी विल बी सैटिस्फाइड और वो प्रिजुडिशियल नहीं लगे। बट अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो देन दीज ट्रांजैक्शन विल बी प्रिजुडिशियल, और यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सत्यप्रिया जी बोल रहे हैं कि डू द डायरेक्टर not have the liberty to determine whether what is prejudicial or not? No, in my opinion, because सर डायरेक्टर तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, बट वो जो डिटरमाइन किया है वो सिर्फ उसके बोल देने से कि ये ट्रांजैक्शन प्रिजुडिशियल नहीं है, that cannot be a reason to be satisfied that that particular transaction is not prejudicial to the company. We need to as a auditor we need to be satisfied by the explanation। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बोल दिया तो हम satisfy हो जाएंगे कि ये कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन
प्रिजुडिशियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स लोन से रिलेटेड। ये दो पुराने पॉइंट है सी और डी, मैं रीड कर दे रहा हूँ बस। इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayment or receipt are regular. So sir इसमें बहुत देखा गया लास्ट 3-4 साल में रिपोर्टिंग होती थी कि सर शेड्यूल ही नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिपेमेंट शेड्यूल प्रिस्क्राइब किया गया है क्या और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड कि नहीं। तो सर ये सिंपल रिपोर्टिंग होता था और प्रॉपर कंप्लायंस था कि सर रिपेमेंट शेड्यूल ही प्रिस्क्राइब नहीं है। सर उसको नीचे अपने देखेंगे सर उसको भी प्लग कर लिया गया है ऑलरेडी। कैसे प्लग किया दैट विल डिस्कस इन कमिंग पॉइंट। एंड सर चौथा एक पॉइंट ऑलरेडी पुराना भी 2016 में भी था, इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैज बीन टेकन। सो सर ये बोला जाता था सर जब रिपेमेंट शेड्यूल ही प्रिस्क्राइब नहीं है तो ओवरड्यू होने का क्वेश्चन ही नहीं आता था। तो बहुत सारी कंपनियां या इस पॉइंट को भी बेसिकली बाईपास कर जाते थे। तो सर इसको देखते हुए दो नए पॉइंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पॉइंट नंबर ई एंड एफ, जो इन दोनों शॉर्टकमिंग्स को प्लग कर लेंगे सर। सबसे पहले वेदर एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन गारंटेड which has fallen due during the year has been renewed or extended or fresh loan guaranteed to settle the overdue of the existing loan given to the same party। तो अगर ऐसा है ये उनके लिए है जिस केसेस में रिपेमेंट शेड्यूल प्रिस्क्राइब था, रिपेमेंट शेड्यूल वाज प्रिस्क्राइब एंड लोन वाज ओवरड्यू, तो सर उसको रिन्यू कर दिया गया है या फिर एक्सटेंड कर दिया गया या नया लोन दे दिया गया टू फॉर द रिपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन। तो ऐसा अगर है तो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज, रिन्यूज, एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन दिया गया एंड द परसेंटेज ऑफ aggregate to the total loans or advances in the nature of loans guaranteed during the year। सर ये वाला क्लॉज उन कंपनियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस लोन्स का है। तो अदर देन दोस कंपनीज अगर कुछ भी रिन्यू या फ्रेश लोन देती है टू सेटल द ओवरड्यू लोन्स, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा सर, उनका एग्रीगेट अमाउंट रिपोर्ट होगा और टोटल का ऐसा क्या परसेंटेज, कितने परसेंटेज लोन ऐसे हैं जिनके लिए ये किया गया है। दिस इज वन न्यू पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट अंडर लोन्स आर whether the company has guaranteed loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms। सर ज्यादातर केस में, बहुत सारे केस में ऐसा सुनने को मिलता था हमें और आप में, सर ये लोन रिपेबल ऑन डिमांड है, सर इसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही डिस्क्राइब नहीं है, बस हमने लोन दे दिया, हमें इंटरेस्ट आ रहा है। सर उन सारे लोन्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना है, जहाँ पे पीरियड ऑफ लोन डिस्क्राइब नहीं है। सर रिपेबल और डिमांड है, जब हम मांगेंगे तब देगा, कोई पीरियड डिस्क्राइब नहीं है। तो उन सारे लोन्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। सर एग्रीगेट अमाउंट देना है उनके लिए एंड परसेंटेज देना है कि टोटल लोन्स का कितना परसेंटेज है ऐसा लोन जो कि रिपेबल और डिमांड है या जिसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। एंड उनमें से कितने पोर्शन ऐसे लोन्स है जो कि रिलेटेड पार्टी या प्रमोटर्स को दिया गया है। तो वो सारे डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे हमें देने होंगे। तो अगेन ये भी एक नया पॉइंट है जो कि प्लग किया है। पुराने कारोज में ये इनडायरेक्टली ये कवर नहीं हो पा रहा था एंड बाईपास कर जा रहा था, पॉइंट सीओडी बाईपास हो जा रहा था, तो इसीलिए ये एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ लोन इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी से रिलेटेड फ्रेंड्स ये पुराना ही पॉइंट है, इसमें ऐसा कुछ न्यू नहीं है। सेक्शन 185 एंड 186 का कंप्लायंस कर यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजंस ऑफ 185 एंड 186 कंप्लाई किया गया है कि नहीं। फ्रेंड्स 185 को लेके एक एम्बिग्यूटी है मार्केट में कि सर जो 185 अमेंड हो गया वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन डेटेड 5th of June 2015 एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो सर 5 जून 2015 वाला एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अभी भी एप्लीकेबल है। तो जो प्राइवेट जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, बेसिकली इफ आई कैन कोट करेक्टली, जो 3 कंडीशंस ये है कि देयर इज नो कॉर्पोरेट अदर देन इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स नहीं है कंपनी में, एंड कंपनी ने मोर देन 2 times ऑफ पेड अप कैपिटल लोन नहीं लिया है। ये सर और एक कंडीशन है कि रिपेमेंट ऑफ डेट्स में डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर ये सारे कंडीशंस कंपनी
फुलफिल करती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो 185 नहीं एप्लीकेबल है उन कंपनियों को। तो इफ 185 इज नॉट एप्लीकेबल, वी कैन स्ट्रेट अवे मेंशन दैट 185 इज नॉट एप्लीकेबल, और 186 का कंप्लायंस वी विल चेक एज ऑडिटर। नो प्रीवियस ईयर फिगर्स नहीं मांगा है यहाँ पे, करंट ईयर का फिगर्स मांगा। दो चीज मांग रहा है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि प्रीवियस ईयर का फिगर्स भी देना है। यहाँ पे दो चीज मांग रहा है कि टोटल लोन आउटस्टैंडिंग कितना है एंड रिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, वो यहाँ पे अपने को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट डिपॉजिट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉइंट्स है। इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, उन सब के रिलेटेड अपने को सेक्शन 73 से 76 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं वो रिपोर्ट करना है। फ्रेंड डिपॉजिट से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट करूंगा सर, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज अ डिपॉजिट, वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स रिलेटिव एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है, बशर्ते कि वो ओन फंड से दिया गया है। अगर वो ओन फंड से नहीं दिया गया तो वो भी एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है, वो भी डिपॉजिट के अंदर फॉल कर जाता है। तो सर ये दो तीन चीज बहुत कॉमनली मिलेंगे व्हेन वी आर ऑडिटिंग, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स अगर है तो सर हमें रिपोर्ट करना है, हमें चेक करना है कि वो ओन फंड से है कि नहीं। अगर वो ओन फंड से है तब तो वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है, यहाँ पे फॉल ही नहीं करेगा। अगर वो ओन फंड से नहीं है डायरेक्टर एंड रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स के, तो सर यहाँ पे फॉल कर जाएगा एंड वो डिपॉजिट में फॉल करेगा एंड हमें फिर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 और 76 चेक करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट नहीं है, उसमें सर कुछ कंप्लायंसेस एग्जेम्प्ट किए गए हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट एंड अदर थिंग्स एग्जेम्प्ट किए गए हैं, बट बाकी वो डिपॉजिट है तो उससे रिलेटेड DPT3 फाइल हुआ है कि नहीं वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड अगेन ओल्ड पॉइंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। कंपनी पे वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड है कि नहीं है, और वो कॉस्ट सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट, दैट नीड टू बी रिपोर्टेड ओवर हियर। नो लिक्विड डिपॉजिट, विश्वनाथ जी पूछ रहे हैं कि लिक्विड डिपॉजिट एंड ऑल जो पॉइंट्स है डिपॉजिट के लिए मेंटेनेंस वो एप्लीकेबल है कि नहीं लोन फ्रॉम शेयर होल्डर। सर बाकी सारा चीज एग्जेम्प्टेड है, सिर्फ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के लिए जो एप्लीकेबल है वो ये है कि सर DPT3 फाइल करना पड़ेगा व्हेनेवर लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज। एनुअली जो फाइल करते हैं वो तो करना ही है, बट जब भी अपने लोन फ्रॉम शेयर होल्डर लेते हैं उस समय भी DPT3 फाइल करना है एंड नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट करना है। ये दो पॉइंट एप्लीकेबल है, बाकी सारा चीज एग्जेम्प्टेड है रिलेटेड टू लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज एज इट इज, पुराना पॉइंट है, कुछ चेंजेस नहीं है। आई एम स्किपिंग दिस पॉइंट। अगर कोई जो पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज ये कंटिन्यूस पुराने पॉइंट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं इन पॉइंट्स में, इसलिए स्किप करके आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स न्यू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, transaction not recorded in the books of accounts. Whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year in tax assessment under the Income Tax Act 1961, if so, whether the previously unrecorded income have been properly recorded in the books of accounts. यहाँ दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये मेनली सर्च एंड सीजर सबसे रिलेटेड है कि कुछ भी पॉइंट अपने हैज बीन सरेंडर्ड, सर एज अ क्लाइंट एसएससी अगर कुछ सरेंडर कर रहा है या डिस्क्लोज कर रहा है तो सर यहाँ पे आएगा। डिपार्टमेंट अगर एड बैक कर रहा है, सिर्फ एसएससी ने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, सरेंडर नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। सर गाइडेंस नोट भी यही बोल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखने का है। और अगर सरेंडर किया है ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी अमाउंट कंपनी ने, तो वो प्रॉपर्ली बुक्स ऑफ अकाउंट में डेल्ट किया है कि नहीं। इंड एएस के केस में और अपने को स्पेसिफिक रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम के केस में हमें चेक करना पड़ता है वेदर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल्स नीड टू बी रिवाइज्ड और नॉट। तो इसलिए वो चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये सारे अमाउंट प्रॉपर्ली डेल्ट विद किए गए हैं कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन रिपेमेंट्स ऑफ लोन्स फ्रेंड्स, रिपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड एक
बहुत सारे बैकग्राउंड ये इस पॉइंट पे इतने सारे न्यू पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने का कि वी हैव बीन विटनेसिंग लॉट ऑफ एनपीएस। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि नया हो रहा है एनपीए, बट देन क्वांटम धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड बहुत सारे लैप्सेस नोटिस किए गए हैं। तो सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फर्दर इनहांस करने के लिए रिपेमेंट ऑफ लोन्स को हाईली फोकस किया गया है। उसी से रिलेटेड सर वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हमने पॉइंट देखा था, इन्वेंट्री में था, और उसी से रिलेटेड 5 नए पॉइंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या क्या है सर पॉइंट्स, वन बाय वन अपने देखते हैं। Whether any company has defaulted in repayment of loan or other borrowings or in payment of interest thereon to any lender, if yes, सर यहाँ पे लेंडर कर दिया गया है। पहले सर स्पेसिफिक था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, लोन। सर अब किसी भी लेंडर को अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो यहाँ पे अपने को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इफ यस, द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट। तो स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दिया है, इस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट करना है। क्या है फॉर्मेट? नेचर ऑफ बोरोइंग्स इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, नेचर ऑफ लेंडर, नेम ऑफ लेंडर हमें स्पेसिफाई करना है, लेंडर वाइज डिटेल टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि सर टोटल लिख देंगे, अलग अलग लेंडर का नेम देना है और लेंडर वाइज डिटेल्स हमें प्रोवाइड करना है यहाँ पे। फिर अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, वेदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना है जो कि ओवरड्यू है। सर डिले कितने दिन का है एंड देन रिमार्क्स देना है। एज द ऑडिटर हमारा यहाँ पे रिमार्क्स देना है। तो सर हमें रिमार्क्स देने के लिए पहले तो सर उनसे रिमार्क्स देना पड़ेगा, उनसे रीजनिंग पूछनी पड़ेगी। तो सर जब हम रिप्रेजेंटेशन एमआरएल लेंगे सर, तो जब नेक्स्ट ईयर जब एमआरएल लेंगे, जब कारो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा और साथ में शेड्यूल 3 रिवाइज्ड एप्लीकेबल हो जाएगा, तो सर जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 ऐसे के हिसाब से हम एमआरएल लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सर अगर कोई भी रिपेमेंट ऑफ लोन डिफॉल्ट हुआ है फ्रॉम एनी लेंडर, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग होगी इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड willful defaulter by any bank or financial institutions or any lender। तो सर अगर willful defaulter डिक्लेयर किया गया है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग आएगी, उसका रिपोर्ट आएगा। फर्दर, whether term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not the amount of loans are diverted and the purpose for which it is used may be reported। तो सर टर्म लोन कंपनी ने लिया है और पर्पस स्पेसिफाई करते हैं जनरली लोन के लिए, तो उस पर्पस के लिए यूज किया गया है कि नहीं किया गया है वो रिपोर्टिंग आएगा। सर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि सर शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो लोन लिया गया है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज किया गया है। सर वर्किंग कैपिटल लोन कंपनी ने लिया और सर फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया या बिल्डिंग परचेज कर ली, तो वो सारे चीज यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं हमें। सर ये मोस्ट ऑफ दीज पॉइंट आर आल्सो देयर इन शेड्यूल 3 अमेंडमेंट। तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन कंपनियों पे कारो एप्लीकेबल है उन पे ही सिर्फ उन्हीं केसेस में इसमें हमें रिपोर्ट करना है। नॉन कारो केसेस में भी शेड्यूल 3 में नोट्स टू अकाउंट्स में तो ये रिपोर्टिंग आनी है सर। तो सर पर्पस ऑफ लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया है वहां पे उसके लिए यूज किया है या डाइवर्ट किया है, डाइवर्ट किया है रिपोर्ट होगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए लोन लिया गया है और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया गया है, यहाँ पे रिपोर्ट करना है। Whether the company has taken in funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiary, associate or joint venture, if so, details thereof with nature of such transaction। सर अगर subsidiaries, associate और joint venture के लिए कोई भी लोन लिया है, यानी कोई to fund them अगर कोई लोन लिया गया तो यहाँ पे रिपोर्ट करना। सर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि कारो के अंदर कोई भी पॉइंट रिपोर्ट हो रहा है तो सर वो नेगेटिव ही है। सर बहुत सारे पॉइंट सर एज अ इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स सर एज ए इंफॉर्मेशन के लिए मांग रहे हैं जिससे कि दे विल एक्ट ऑन देम लेटर ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। अगर बाद में डिफॉल्ट होता है या फिर दीज विल बी अर्ली वार्निंग पॉइंट्स के रूप में गवर्नमेंट जानना चाहती है, हम ये बोल सकते हैं सर। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, अगर वो है तो उसका डिटेल देना है। यानी सब्सिडरी के लिए कोई लोन लिया गया है तो उनका डिटेल्स देना है, यानी या उनके सिक्योरिटीज या उनके एसेट्स को प्लेज कर, सिक्योरिटीज को प्लेज करके कोई लोन लिया गया है तो भी यहाँ पे रिपोर्ट करें। यानी सर
से एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो सर वाई प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, मोर देन 51% होल्ड करता है, तो सर उन सिक्योरिटीज को अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड प्लेज करता है और लोन ले रहा है तो सर वो भी रिपोर्टिंग यहाँ पे आएगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ड्यूरिंग द ईयर वो सब्सिडरी नहीं रहा, ceased to be subsidiary, the company has ceased to be subsidiary, तो क्या होगा? सर एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन हमें देखना पड़ेगा कि जब लोन ले रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है कि नहीं, क्योंकि आप सर स्पेसिफिक वर्ड हैज टेकन एनी फंड्स, तो सर जब लोन ले रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना पड़ेगा कि सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट है कि नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू आईपीओ एंड एफपीओ। सर यहाँ पे एज सच कुछ चेंजेस नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अगर इंक्रीज इन शेयर्स हुआ है या कंपनी ने आईपीओ इशू किया है, एफपीओ इशू किया है, तो यहाँ पे कंप्लाइंस पूरे के पूरे चेक करने हैं। अभी सर 42 एंड 62 भी ऐड कर दिया, सेक्शन 62 का भी कंप्लाइंस चेक करना है, यानी राइट इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो, दोनों का रिलेटेड प्रॉपर कंप्लाइंस हुआ है कि नहीं वो यहाँ रिपोर्ट करना है। अगर यहाँ पे सर प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंडेटरी है, तो सर वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बहुत सारी एंटिटीज हम देखेंगे कि ऐसा किया गया है कि विदाउट वैल्यूएशन रिपोर्ट रिपोर्टिंग कर दिया गया एंड कैपिटल इंक्रीज कर दिया गया एंड पास 3 बीइंग एसटीपी फॉर्म वो अप्रूव भी हो गया है। तो उन केसेस में बाय द वे बहुत सारे केसेस में हमने ये नोटिस किया कि एमजीटी 14 जो प्राइवेट प्लेसमेंट में सबमिट होता है उसे रीसबमिशन भेजा गया फॉर वांट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, बट देन many cases we will notice during the course of our audit where capital has been increased with the private placement and the company has not taken a valuation report, तो उन केसेस में नॉन कंप्लाइंस होगा सेक्शन 62 और 42 को, और यहाँ रिपोर्ट करना होगा। या फिर ये हो सकता है कंपनी ने एक सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं खोला, या फिर कंपनी ने फंड्स को पहले यूटिलाइज कर लिया, तो कंपनी हैज यूटिलाइज द फंड बिफोर फाइलिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट। सर जो नया कंपनीज एक्ट 2017 में अमेंडमेंट आया था, 17 का जो अमेंडमेंट आया था, तो उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया था कि वी कैन यूटिलाइज द फंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली आफ्टर फाइलिंग ऑफ फॉर्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलॉटमेंट का रिजोल्यूशन पास कर दिए तो हम फाइल कर सकते हैं, वी ऑल्सो नीड टू फाइल द फॉर्म पास 3, देन ओनली वी कैन यूटिलाइज द फंड। तो ये सारे चीज हमें चेक करने पड़ेंगे अगर इंक्रीज इन कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर। न्यू पॉइंट मतलब न्यू पॉइंट नहीं है सर, 16 में भी था बट छोटा था, अभी उसको इंक्रीज करके 3 सब पॉइंट्स बना दिए गए हैं रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रेंड्स क्या है सर, अगेन सर हम जो बात कर रहे थे कि सर जहाँ पे बुक डेट स्टेटमेंट और स्टॉक स्टेटमेंट डिफरेंस कर रहा है वहाँ पे फ्रॉड एप्लीकेबल होगा कि नहीं वो जज करना पड़ेगा, उसके क्वांटम पे डिपेंड करेगा। वैसे ही यहाँ पे सर फ्रॉड में पहले जो पॉइंट था फ्रॉड में, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय था। अब सर बाय इट्स ऑफिसर एंड एम्प्लॉय को हटा दिया गया है, तो सर अब सर ऑफिसर और एम्प्लॉय ने नहीं किया और किसी ने भी फ्रॉड किया है रिलेटेड टू कंपनी, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो सर वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी has been noticed or reported during the year, if yes the nature and amount involved is to be indicated. तो सर अर्लियर क्योंकि सर बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज था, तो सर बहुत सारे फ्रॉड जो हुए थे कंपनी पे वो रिपोर्ट नहीं होते थे, जो कि नॉन एम्प्लॉइज से वेंडर ने एक फ्रॉड किया, वेंडर ने सर फेक बैंक गारंटी कंपनी को दे दी थी और उसके अगेंस्ट पे एडवांसेस ले लिया एंड वो इस क्लॉज में वो रिपोर्ट नहीं हो पा रहा था, अल्टीमेटली वो फ्रॉड था। तो अब वो सारे चीज यहाँ पे रिपोर्ट होंगे। सर यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन है हु कैन डू फ्रॉड फ्रॉड ऑन द कंपनी अदर देन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। सर मैंने जो एग्जांपल दिया उस केस में तो सर एक वेंडर ने फ्रॉड किया है कंपनी के साथ, तो फ्रॉड ऑन द कंपनी में वो कवर हो जाएगा। सर अर्लियर पहले ये पॉइंट था तो ऑन द कंपनी में ये नहीं कवर कर पा रहे थे अदर देन एम्प्लॉय एंड ऑफिसर को। सर दो जो नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है रिलेटेड टू फ्रॉड, दीज आर वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 और सेक्शन 143 जो हम पहले भी बात की है हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर। तो सर अगर फ्रॉड का ऑडिटर को लगा है कि फ्रॉड है और ऑडिटर ने EDT 4 फाइल किया गया है तो स्पेसिफिकली अब यहाँ पे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था एज अ
कहीं पे ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता था ये चीज, अब स्पेसिफिकली यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा। नाउ लास्ट पॉइंट, वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द, तो सर एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर कंपनियों को विजाइल मैकेनिज्म प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी के लिए, एंड विसिल ब्लोअर पॉलिसी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एज पर दैट पॉलिसी अगर कोई भी कंप्लेंट ड्यूरिंग द ईयर आया है तो एज अ ऑडिटर हमें उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई भी कंप्लेंट रिसीव हुआ है कि नहीं ड्यूरिंग द ईयर। नाउ निधि कंपनी से रिलेटेड, वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट और रिपेमेंट ऑफ विद इन देयरऑफ फॉर एनी पीरियड, बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी नहीं है, अपने स्किप कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है। सेक्शन 177 और 188 का कंप्लाइंस करना है अपने को, कंप्लाइंस चेक करना है और रिपोर्ट करना है। 177 ऑडिट कमिटी से रिलेटेड हो गया एंड 188 आपका नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो गया। इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड नया पॉइंट आया है सर। पहले तो सर इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट हुआ करता था, जब आईएफसी आया तो सर इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट हटा दिया गया। अब सर वापस से इंटरनल ऑडिट का पॉइंट आया है यहाँ पे अपने को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट नहीं आया है। यहाँ पे दो पॉइंट है, वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम commensurate with the size and nature of its business, number 1. Number 2, whether the report of internal auditor for the period under audit were considered by the statutory authority. तो सर यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो एप्लीकेबल है कि नहीं इंटरनल ऑडिट कंपनी पे। तो किन कंपनियों पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है? सबसे पहले ऑल लिस्टेड कंपनीज, सारे लिस्टेड कंपनियों पे एप्लीकेबल है। देन फर्दर दो कैटेगरी आ जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ एंड बोरिंग्स मोर देन 100 करोड़ पे एप्लीकेबल है इंटरनल ऑडिट। अगर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर हिट करता है, दोनों में से कोई भी एक थ्रेशोल्ड हिट करता है कंपनी। और इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज अगर अपने बात करेंगे तो ये दोनों क्राइटेरिया तो है ही, 200 करोड़ का टर्नओवर हो, 100 करोड़ का लोन्स हो। दो और एडिशनल क्राइटेरिया, दैट इज 50 करोड़ एंड अबव ऑफ पेड अप कैपिटल, और एक चौथा कंडीशन है 25 करोड़ एंड अबव का डिपॉजिट है। तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर हिट होता है तो उन कंपनियों पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। और अगर वो एप्लीकेबल है तो एज एन ऑडिटर वी नीड टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम, और वो है कि नहीं है, और है तो वेदर द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस से कमेंसरेट करता है कि नहीं करता है। और अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो एज अ ऑडिटर हमने, एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर किया है कि नहीं व्हाइल आवर रिपोर्टिंग, व्हाइल डूइंग आवर रिपोर्टिंग। नॉन कैश ट्रांजैक्शन पुराना है सर, कोई चेंज नहीं है, अपने आगे बढ़ते हैं। सर एनबीएफसी से रिलेटेड एक नया पॉइंट लाया गया था कानून 2016 में, जहां सिर्फ सिंपली यही पूछता था कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, मतलब एनबीएफसी के लिए रजिस्टर्ड करने का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है कंपनी को। यस नो लिख के अपने स्किप कर जाते थे, और अगर रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने ऑब्टेन किया है कि नहीं। बट अब एनबीएफसी से रिलेटेड और 3 नए पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। एक सर सीआईसी से, 2 पॉइंट सीआईसी से रिलेटेड है और एक पहले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। तो सर फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंशन है, पॉइंट नंबर बी, वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। तो सर पहले तो था कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है रजिस्ट्रेशन का, अब सर ये भी रिपोर्ट करना है कि विदाउट हैविंग अ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई क्या सर ट्रांजैक्शंस किए हैं, बिकॉज बहुत सारी कंपनियां सिर्फ बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रांजैक्शन भी हुआ है वो भी रिपोर्ट करना है यहाँ पर पॉइंट नंबर बी में। एंड पॉइंट नंबर सी और डी जो 2 नए पॉइंट है, दीज आर रिलेटेड टू बेसिकली सत्यप्रिया जी पूछ रहे हैं 50-50 टेस्ट अगर फेल हो रहा है कंपनी का तो कैसे रिपोर्ट करना है। सर 50-50 टेस्ट फेल हो रहा है तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट में रिपोर्टिंग हो जाएगा कि यस इट इज एप्लीकेबल, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सर वो रिपोर्ट रजिस्टर किया है कि नहीं किया है,
तो यहाँ पे अगर कंपनी ने नहीं रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पे नेगेटिव कमेंट आएगा कि द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड दे हैव नॉट रजिस्टर्ड। पॉइंट नंबर बी में भी रिपोर्टिंग आ जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर वेदर कंपनी ने, क्योंकि कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कंपनी ने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज की है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी किया है, इन दोनों पॉइंट में रिपोर्टिंग आ जाएगा। पॉइंट नंबर सी और डी फ्रेंड्स, ये CIC से रिलेटेड है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज से रिलेटेड। सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होती है? सर CIC वैसी NBFC कंपनी बोल सकते हैं इनको, या इन्वेस्टमेंट कंपनी बोल सकते हैं, जिनको कि NBFC का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। तो कौन सी कंपनी होती है सर? सर मोर देन 90% ऑफ इट्स एसेट्स अगर इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी, इन्वेस्टमेंट है ग्रुप कंपनी में, लोन दिया हुआ है इन एनी सिक्योरिटीज, तो सर वो CIC है। एंड सेकेंड कंडीशन इज सर मोर देन 60% एंड अबाउट सर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ग्रुप में। तो ये दोनों कंडीशन अगर कोई कंपनी फुलफिल करता है तो वो CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है और उनको RBI का रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल ये रिपोर्ट करना है अपने को कि वेदर द कंपनी इज अ CIC, और अगर CIC है तो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ CIC, जो दोनों मैंने क्राइटेरिया बताया आपको, एंड इन केस द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड CIC वेदर इज कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया। तो सर एग्जेम्पशन के लिए जो जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और सर लास्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि क्या ग्रुप में एक से ज्यादा CIC है क्या? तो सर ये CIC का वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि सर CIC एक ग्रुप में सर एक ही CIC हो सकता है, एक ग्रुप में मोर देन वन CIC नहीं हो सकता, और मोर देन वन CIC होगा तो सर देन अगेन सर वायलेट कर जाता है क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो वो भी यहाँ पे पूछ रहा है। सर CIC का कंडीशंस रिपीट करने बोल रहे हैं सर, दो कंडीशन है। पहला है मोर देन 90% एंड अबव assets are used in investment in group companies in any securities, it may be equity, preference share, debentures या फिर लोन में है। अगर 90% एंड अबव एसेट्स ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है या लोन दिया हुआ है, एंड 60% and above of the assets of the company are into the equity, invested in equity of the group company, तो वो CIC में फॉल करेगा। सर कैश लॉसेस से रिलेटेड एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है। सर ये इफ वी रिमेंबर कैश लॉस से रिलेटेड ऑलरेडी सर कारो 2003 में भी एक पॉइंट हुआ करता था, आई एम नॉट रॉन्ग, कि कैश लॉस से रिलेटेड। तो वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर कैश लॉसेस है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है विद द अमाउंट, कैश लॉसेस का क्या अमाउंट है वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है अपने को। नाउ सर ऑडिटर रेजिग्नेशन से रिलेटेड हमने बात की थी कि बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था बीच में, तो इसीलिए स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक ले आया है रिलेटेड टू ऑडिटर रेजिग्नेशन। क्या पॉइंट है सर? वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर रेजिग्नेशन हुआ है कि नहीं ऑडिटर का? इफ सो whether the auditor has taken into consideration the issues, objections and concerns raised by the outgoing auditor। तो outgoing auditor ने कोई भी जो भी issues and concerns raise किए हैं वो आउटगोइंग वो एज अ ऑडिटर ऑफ द एंटिटी हमने कंसीडर किया है कि नहीं किया है। सर ऑडिटर रेजिग्नेशन से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे स्टेट करना चाहूंगा सर, कि अभी आप लोग किसी भी एंटिटी के केस में जब रिजाइन कर रहे हैं तो सर एक सर डिटेल्ड एलेबोरेटेड रेजिग्नेशन लेटर देने की दरकार है। सर अगर सिंपल हम प्री ऑक्यूपेंसी या पर्सनल रीजन लिखते हैं तो डेफिनेटली एक शोकॉज आएगा ऑडिटर को बाद में MCA द्वारा। पास्ट में हम देखें, लास्ट 1-2 साल में हम लोगों ने देखा है, विटनेस किया है कि काफी ऑडिटर्स को ये शोकॉज आया है। तो नाउ दे आर नॉट कंसीडरिंग दीज एज अ रीजन। उनका बेसिकली कहना है कि सर आपने तो कंसेंट दिया है 5 साल के लिए, तो प्री ऑक्यूपेंसी और इन सब रीजन के कारण आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर रेजिग्नेशन होता है, अगर रेजिग्नेशन करना पड़ता है किसी भी रीजन से, तो स्पेसिफिक डिटेल्ड रीजन हमें देना पड़ेगा। सर लाइबिलिटी पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, सर बहुत फोकस आ गया है ऑन गोइंग कंसर्न इफिसी। तो सर रिलेवेंस हो गया है सर, ऐसे 570 का एक बहुत बड़ा हमेशा से था और अभी फर्दर एक रिलेवेंट हो गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू। नया जो ऑडिट रिपोर्ट आया है सर, रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट जो हम ऑलरेडी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां भी हम देखेंगे कि सर गोइंग कंसर्न को लेते हुए एक स्पेसिफिक पैरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है।
तो सर एज सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम अगर बात करेंगे तो जनरली सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गोइंग कंसर्न को लेके कोई डिटेल्ड या वैसा सच नहीं रिपोर्टिंग होता है सर। AS1 जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, AS1 कहता है कि सर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, और अगर हम गोइंग कंसर्न वायलेट हो रहा है कंपनी का तो सर हमें नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट करने की दरकार है। तो सर वायलेट अगर होगा तो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, और सर लाइबिलिटी पेमेंट कैपेसिटी कंपनी की है कि नहीं वो एज अ ऑडिटर हमें यहाँ पे कारो के इस क्लॉज में रिपोर्ट करना है। तो गोइंग कंसर्न अगर बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट अगर हो रहा है तो इसका मतलब लाइबिलिटी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है कंपनी का। तो बेसिकली फाइनेंशियल्स भी कंपनी का जो प्रिपेयर होगा वो नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पे, मे बी लिक्विडेशन बेसिस पे प्रिपेयर होगा फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है सर? रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे सर एक पॉइंट है सर, पहले जब कारो आया था तो सर ये क्लैरिटी नहीं था कि किन रेशियोज के बेसिस पे हमें कमेंट करना है। तो सर अब नए शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट आया है वहाँ पे उन्होंने 10-11 रेशियोज को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये सब रेशियोज हमें नोट्स टू अकाउंट्स में देने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रेशियोज वी एज अ ऑडिटर नीड टू कमेंट नाउ। एंड सर एजिंग भी हमें पता नहीं था कहाँ से मिलेगी, तो सर वो पूरा का पूरा एजिंग भी अब हमें नोट्स टू अकाउंट्स में देना है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, सीवीप, इन सभी चीजों की एजिंग देनी है हमें नोट्स टू अकाउंट्स में। तो सर ऑन दीज बेसिस other accompanying the auditor knowledge of board of director and management, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainties exist as on the date of audit report, that company is capable of meeting its expenses existing as on the date of balance sheet as and when they fall due within the period of 1 year। तो नेक्स्ट 1 ईयर का रिपेमेंट कैपेबिलिटी कंपनी की है कि नहीं है। तो सर यहाँ पे अगेन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की दरकार है। सिंपली सर हम जो नॉर्मल ऑडिट करते हैं उससे यहाँ पे अपने कमेंट नहीं दे पाएंगे सर। हमें बहुत सारे एडिशनल डिटेल्स कंपनी से लेने पड़ेंगे। सर कौन कौन से ऐसे लाइबिलिटीज है कंपनी की जो कि नेक्स्ट 12 महीने में ड्यू पड़ रहे हैं। तो सर मोर देन 12 महीने की जो लाइबिलिटीज है उसके लिए अपने को बॉदर नहीं करना है। नेक्स्ट 12 मंथ्स की लाइबिलिटीज जो है बैलेंस शीट डेट में जो रहते हैं, यानी सर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मेरे नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड जो सेल होंगे, परचेज करेगी कंपनी, वो लाइबिलिटी जो अराइज होगी वो भी रिपेबल कर पाएगी कि नहीं, रिपेमेंट कर पाएगी कि नहीं। सर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है लाइबिलिटीज एग्जिस्टिंग एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो सर बैलेंस शीट डेट पे जो लाइबिलिटी है और जो ड्यू हो रहा है नेक्स्ट 1 ईयर में वो कंपनी रिपे कर पाएगी कि नहीं, वो यहाँ पे कमेंट्स में कमेंट करना है, उसके बारे में हमें एज ऑडिटर यहाँ पे कमेंट करना है। Then last pointer friends, this is applicable in case of consolidated financial statement। consolidated financial statement के केस में whether there have been any qualification or adverse remark by the respective auditor in the caro report of companies included in the CFS। अगर कोई भी adverse remark है respective auditors का, जो भी कंपनी कंसोलिडेट हो रही है, तो अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स का ऑडिट कर रहे हैं, अगर हम सीएफएस का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है कि ये जो रिक्वायरमेंट है दिस इज नॉट रिलेटेड टू SA 705 जो कि क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क की बात करता है। वो एडवर्स रिमार्क की बात या वो क्वालिफिकेशन की बात यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ कारो में कोई भी जो एडवर्स रिमार्क्स है उसकी बात कर रहा है। तो कारो में अगर किसी भी पॉइंट में सब्सिडीज या एसोसिएट्स का एडवर्स रिमार्क्स है और हम सीएफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो सर यहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट। These were the important points and changes in Caro friends। Questions, most of the questions I have tried to answer during the session। अभी सर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं शेड्यूल 3 चेंजेस में, तो वेरी क्विकली वी विल गो टू शेड्यूल 3 चेंजेस। वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स एंड देन वी कैन टेक अप क्वेश्चन आंसर। I hope that is okay, Gopal Bhaiya।
Yes. फ्रेंड्स शेड्यूल 3 में अब आ जाते हैं अपने। सो 24 अप्रैल 2021 को अगेन एक नोटिफिकेशन आया और शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट आ गया अलॉन्ग विद अदर नोटिफिकेशंस जो कि अभी डेफर हो गया है, व्हिच इज वन ऑफ देम वाज मेनली रिलेटेड टू ऑडिट ट्रेल्स एंड देन शेड्यूल 3 में सेल्फ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है उसमें काफी सारे न्यू चेंजेस आ गए हैं, अपने वन बाय वन देखेंगे। तो सर बैकग्राउंड ये है इनका कि सर सबसे पहले तो सर जब ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कंपनीज पे, एंड जब ये सारे रिपोर्टिंग सेल्फ मोड में कंपनी खुद ही, जो नए शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट है, कंपनी खुद रिपोर्ट करेगी इतने सारी चीजें, तो सर गवर्नमेंट को, एमसीए को ये लग रहा है कि फिर छोटी कंपनियों को ऑडिट कराने का रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑलरेडी सर कहीं ना कहीं डिस्कशन है और हो सकता है इन नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स विल विटनेस कि छोटी कंपनी या कुछ कंपनियों का ऑडिट, जैसा कि ऑलरेडी एलएलपीज के केस में अपने देख रहे हैं कि सर 25 लाख कैपिटल एंड 40 लाख का टर्नओवर से नीचे है तो उस केस में ऑडिट नहीं कराना पड़ता उनको। सिमिलरली हो सकता है कि कंपनियों के लिए भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ जाए जहाँ पे उनको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, एंड जब भी गवर्नमेंट को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को लगेगा दे कैन आस्क फॉर द ऑडिट ट्रेल फ्रॉम द कंपनी और वो फिर चेक कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये सारे अमेंडमेंट उन्होंने ला दिया जो कि ऑलरेडी ऑडिट नहीं भी हो तो कंपनी को खुद से रिपोर्ट करनी ही है। सर शेड्यूल 3 में जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे कि सर नेक्स्ट ईयर जब शेड्यूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा तो सबसे पहला काम जो हमें करना है अपने क्लाइंट्स के साथ कि सर उन्हें एक मेल करना है फॉर इंक्रीज इन ऑडिट फी। सर वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर एग्जिस्टिंग ऑडिट फी के साथ हम ये नए शेड्यूल 3 को प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे और इसका ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे। तो सर सबसे पहले हमें एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर दीज अमेंडमेंट्स चेक करना है कितना एफर्ट बढ़ेगा हमारे एंड पे और देन ऑडिट फी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी, या जो जिस केस में हम फाइनेंशियल सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो सर फाइनेंशियल प्रिपरेशंस का फीस इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई बिलीव वी मस्ट डू। तो सर सेक्शन 129 के हिसाब से सर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आता है जो कि बोलता है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ऑफ गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड साथ में वो ये बोल रहा है कि शेड्यूल 3 भी हमें फॉलो करना है, सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सर शेड्यूल 3 में हम जाएंगे तो इनिशियली शेड्यूल 3 में सिर्फ एक ही डिवीजन हुआ करता था जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंटिटीज पे इंडियन गैप का था और एप्लीकेबल होता था, पर धीरे धीरे आज के दिन 3 डिविजन्स है शेड्यूल 3 का। डिवीजन 1 इंडियन गैप के लिए एप्लीकेबल है, डिवीजन 2 इंड एस के लिए एप्लीकेबल है, एंड डिवीजन 3 ऐसी एंटिटी एनबीएफसी कंपनीज जिन पे इंड एस एप्लीकेबल है उनके लिए एप्लीकेबल है। तो सर हम लोग मेनली डिवीजन 1 ही डिस्कस करेंगे जो कि ज्यादा रिलेवेंट है अपने लोगों के लिए। 2 और 3 में सर मोर और लेस जो डिवीजन 1 में चेंजेस है वो सारे चेंजेस के अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसी से या इंडिया से रिलेटेड चेंजेस है। सर सबसे पहला पॉइंट है सर राउंडिंग अप मैंडेटरी हो गया है। सर 2 चेंजेस आया है राउंडिंग अप में। सर पहले ये रिकमेंडेटरी था राउंडिंग अप, सर अब मैंडेटरी हो गया है, एंड पहले सर टर्नओवर के बेसिस पे था राउंडिंग ऑफ प्रोविजन, अब सर ये टोटल इनकम के बेसिस पे हो गया है। तो अगर 100 करोड़ से नीचे है टोटल इनकम कंपनी का तो मैंडेटरी सर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा टू नियरेस्ट 100,000 और लैक्स और मिलियन और डेसिमल देयर ऑफ, एंड सर इन केस कंपनी का मोर देन 100 करोड़ का टर्नओवर है तो सर राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी हो जाएगा टू नियरेस्ट लाख, मिलियंस और करोड़। तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जब हम फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो ये नया शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होगा। तो अगेन सर इस पॉइंट के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि सर इसी साल से क्यों ना हम लोग चालू कर लें, जो हम लोग अगर हमारे पास रिसोर्सेस है तो सर 2021 का जो हम रिपोर्टिंग करें इफ पॉसिबल सो हमें राउंड ऑफ में कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, एक सर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट सर शेयर कैपिटल से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग मोर देन 5% रिपोर्ट करते हैं शेड्यूल 3 में। सर नया रिक्वायरमेंट जो आया है सर प्रमोटर शेयर होल्डिंग को भी रिपोर्ट करना है, एंड सर रिपोर्टिंग का यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। प्रमोटर का नेम देना है, नंबर ऑफ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। तो सर बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स हो सकते हैं
जो कि लेस देन 5% होल्ड करते हैं, तो उनका अब अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा ये चीज, अर्लियर जो कि नहीं दिखता था। सर स्टार्टअप के केस में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो गया ये वाला पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप के केस में सर लेस देन 5% स्टेक, इक्विटी का स्टेक लेके रखते हैं कंपनी, बट ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रमोटर कैटेगरी में फॉल करते हैं, बट उनका डिस्क्लोजर नहीं आता है ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उन सब केसेस में अब ये डिस्क्लोज हो जाएगा। इफ द प्रमोटर इज हैविंग एनी शेयर होल्डिंग, वो यहाँ पे डिस्क्लोज होता है। फॉर द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फ्रेंड्स, सर पहले ये अदर करंट लायबिलिटी के अंडर आता था, ऑलरेडी था, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अब सर वहां पे ओमिट हो गया है एंड वी नीड टू डिस्क्लोज इट अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सर जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसको अब हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डालना है, ना कि जो कि हम अभी तक डालते थे अदर करंट लायबिलिटीज में। फ्रेंड्स जो एजिंग की बात हो रही है सर, पेबल का सर कभी भी हम एजिंग नहीं देते थे, सिर्फ डेटर्स का एजिंग देते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो भी सर लेस देन 6 मंथ एंड मोर देन 6 मंथ। तो सर अब डिटेल्ड एजिंग देने की दरकार है सर यहाँ पे। सर रिसीवेबल का तो हम आगे देखेंगे, वहां पे तो रिक्वायरमेंट है ही, सर पेबल्स की एजिंग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे आ गई है। सो लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 years, more than 3 years एंड टोटल, एंड यहाँ जो टोटल होगा वो अपना टोटल पेबल से मैच करेगा। फर्दर सर इस यहाँ पे अपने को बाइफरकेट भी करना है, वेदर इट इज डिस्प्यूटेड, वेदर इट इज नॉट डिस्प्यूटेड, वेदर इट इज पेबल टू एमएसएमई और पेबल टू नॉन एमएसएमई। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पेबल टू एमएसएमई है एंड मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 years, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे है कि आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट अपने को देखना है, तो ड्यू डेट के पेमेंट से 1 साल ज्यादा है। तो सर अगर से एग्जांपल अगर ड्यू डेट ही 1 साल बाद का है और वो तो इनकी इन दैट केस वो लेस देन 1 ईयर में आएगा। तो ड्यू डेट से ज्यादा अगर मोर देन 1 ईयर है तो 1 to 2 में आएगा फ्रॉम ड्यू डेट। और तो एक क्वेश्चन आता है कि सर ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, इफ देयर इज द ड्यू डेट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन ट्रांजैक्शन डेट इज ड्यू डेट, तो फिर सर ट्रांजैक्शन डेट से देखेंगे। तो वापस आते हैं एमएसएमई की हम बात कर रहे थे, तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ये डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि सर एमएसएमई को पैसा देना बाकी है, पेबल्स है एंड दैट इज ड्यू फॉर मोर देन 2 years और मोर देन 3 years। तो सर यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट होगा, सिर्फ एज अ ऑडिटर सर हमें चेक करना पड़ेगा, या मैनेजमेंट खुद चेक कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सर एज अ ऑडिटर सर हमें उसमें क्या लाइबिलिटी आ सकती है, क्या हमें बिकॉज सर मोर देन 45 days अगर ड्यू रहता है एमएसएमई को, तो मोर देन 45 days इन केस ऑफ if the dues to MSME is more than 45 days, in that case MSME can go to the respective department, MSME department, they can वहां से सर वो ऑर्डर ला सकते हैं, जिस केस में सर हमें 2 times ऑफ द बैंक रेट का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो सर 3 साल से ज्यादा अगर बकाया है एमएसएमई को, तो सर वी एज अ ऑडिटर नीड टू सी वेदर सर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी या बुक्स में कोई लाइबिलिटी क्रिएट करना है कि नहीं करना है, दैट नीड टू बी सीन एज अ मैनेजमेंट को भी देखना ही देखना है, और मैनेजमेंट नहीं देख रहा है तो ऑडिटर एज अ ऑडिटर हमें देखना पड़ेगा सर। देन सर टेंजेबल एसेट से रिलेटेड सर हमने कारों में भी देखा है सर, यहाँ सिमिलर डिस्क्लोजर है पहले जैसा ही, नया 2 पॉइंट इसमें लाया गया है सर। एक तो सर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक पॉइंट लाया गया है कि सर रिवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, उसका सेपरेट एक डिस्क्लोजर करने की दरकार है, और सर 10% एंड मोर का अगर चेंजेस इंपैक्ट आया है तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज करने के दरकार है। सर टेंजेबल एसेट में भी एंड सिमिलर रिक्वायरमेंट आया है फॉर इंटेंजेबल एसेट एज वेल। नाउ सर सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड चेंज आया है। पहले सर सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाते थे, सर अब वो स्पेसिफाई कर दिया है, अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं दिखाते, हमें सर अदर नॉन करेंट एसेट्स में दिखा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट को। अगेन सर ट्रेड रिसीवेबल में भी डिटेल्ड एजिंग हमें देनी है, सिर्फ एक ही चेंज है सर, यहाँ पे लेस देन 6 months भी दिखाना है, तो लेस देन 6 months 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल एंड मोर देन 6 years। अगेन यहाँ पे भी फर्दर जो हमें अमाउंट्स को बाइफरकेट करने हैं वो ये है अनडिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड में बाइफरकेट करने होंगे, एंड वेदर वो रिसीवेबल गुड है या फिर डाउटफुल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर एक एक चार्ट को बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैंने कहा सर एग्जिस्टिंग फीस में हम क्या कोई भी सर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, तो फीस इंक्रीज करना बहुत
इम्पॉर्टेंट है बिफोर प्रिपेयरिंग द न्यू शेड्यूल 3. नाउ सर बोरोइंग से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लाया गया है जो कि कारो में भी था, आपने डिस्कस किया है. वेदर कंपनी हैज नॉट यूज्ड द बोरोइंग्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर व्हिच इट वाज टेकन